let us discuss exercise 11.4. In that we shall discuss about volume formula for the polar curves. Now the volume of the solid generated by revolving any area bounded by the curve r is equal to f theta. So r is equal to f theta is a polar curve and the radii vectors are theta is equal to alpha and theta is equal to beta. So about theta is equal to 0 means about your initial line. If the curve is symmetrical about the initial line, we will use this formula alpha to beta 2 by 3 pi r cube sin theta d theta. Now about theta is equal to pi by 2 means about the perpendicular line from alpha to beta 2 by 3 pi r cube cos theta will be the formula. Only difference is that about the initial line you will use sin theta and about perpendicular line you will use this term cos theta. So in example number 1 it is given to you that the cardioid r is equal to a 1 plus cos theta revolves about the initial line and find the solid thus generated. So r is equal to a 1 plus cos theta हमारे पास इस टाइप का कार्डोइड होता है और अगर माइनस में बात करें तो वो इस टाइप का कार्डोइड होगा. This we have already discussed in the curve tracing, so no need to draw here again. You can see that video, from that it will be clear to you. So r is equal to a 1 plus cos theta. This is 0, theta is equal to 0 and here theta is equal to pi. So हम क्या करेंगे, इस कार्डोइड का हम सिर्फ ऊपर वाला पार्ट को जो है रिवॉल्व करेंगे. इस पूरे वाले पार्ट को हम नहीं रिवॉल्व करेंगे, सिंपल ऊपर वाला पार्ट रिवॉल्व करके उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे बिकॉज सेम जनरेट होएगा. अगर आप ऊपर वाला पार्ट रिवॉल्व करोगे तो भी सेम वॉल्यूम जनरेट होएगा और पूरे को रिवॉल्व करोगे तो भी सेम वॉल्यूम जो हमारे पास जनरेट होएगा. So from 0 to pi, this cardioid is symmetrical about the initial line, that is theta is equal to 0. So we will use the formula 2 by 3 pi r cube sin theta d theta. So 2 by 3 pi बाहर निकाल देते हैं, r cube that is a cube 1 plus cos theta cube into sin theta d theta from 0 to pi. Now let 1 plus cos theta is equal to t. So minus sin theta d theta is equal to your dt. So sin theta d theta को हम क्या पुट कर सकते हैं, minus of dt. So 2 by 3 a cube from, अब देखिए 0 में जब मैंने यहाँ पे थीटा 0 पुट किया तो cos 0 is 1, so it will value will be 2 and cos pi is minus 1, so from 2 to 0 t cube minus. So we have minus 2 pi a cube by 3 t raised to power 4 by 4 from 0 to 2. So we have minus 2 pi a cube divided by 3 into 4 2 raised to power 4 minus आएगा यहाँ क्योंकि 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, माइनस इन लोअर लिमिट दैट इज minus 2 raised to power 4. ये मल्टीप्लाई में, so minus minus plus, so we will get 2 raised to power 5 pi a cube by 4 into 3. So इसको सोल्व आउट करके आपका आंसर आ जाएगा 8 by 3 pi a cube. So this is the volume of the cardioid. Now let us discuss example number 2. Show that the volume of solid generated by the revolution of the curve r is equal to a plus b cos theta. Condition is a greater than b about the initial line is 4 by 3 pi a square plus b square. अब यहाँ पे कंडीशन दे रखी है a greater than b है. अगर आपने कर्व ट्रेसिंग की एक्सरसाइज 7.3 की है तो उसमें a equals to b, a less than b, 3 कंडीशन में ये क्वेश्चन गिवन है. तो यहाँ पे हम a greater than b में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट चेक करते हैं सिमेट्री. Changing theta to minus theta, the value of r remains unchanged. So symmetrical about the initial line. फिर अगर आपको ध्यान हो तो हम थीटा को पाई माइनस थीटा में चेंज करते चेक करने के लिए वो परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है या नहीं, और थीटा को पाई प्लस थीटा में चेंज करते चेक करने के लिए कि वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है या नहीं. तो इसमें इधर सिमेट्री नहीं है हमारे पास,
नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि ओरिजिन से पास करा ही नहीं करा। देखिए हमें दे रखा है a इज ग्रेटर देन b, सो a by b will be greater than 1, so we will have a by b greater than 1। सपोज मैंने ले लिया 1.1, सो कभी भी यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू 1.1 आ नहीं सकती, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू हमारे पास -1 to 1 के बीच में लाई करती है, तो इसकी वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर नहीं आ सकती। तो इस पूरे की वैल्यू भी हम कह सकते हैं कि 1 से ग्रेटर नहीं आएगी। सो देयरफॉर द कर्व डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। अगर ये कंडीशन होल्ड हो जाती तो ये ओरिजिन से पास करता। जैसे a लेस देन b में क्या आएगा, लेस देन b में a by b इज लेस देन 1, सो लेस देन 1 तो पॉसिबल है, सो कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, यहाँ पे डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन। सो ये a by डिफरेंट कंडीशंस में हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं एसिम्पटोट। कर्व डज नॉट हैव एनी एसिम्पटोट। Why? Because for any value of theta, for any finite value of theta, r will not tend to infinity. You can write here for any finite value of theta, r does not tend, वो infinity को टेंड नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हम चेक करते हैं रीजन। वी नो दैट cos थीटा लाइज फ्रॉम -1 to 1, सो हमारे पास जो r लाई करेगा, जब हमने -1 पुट किया तो a माइनस बी, और जब प्लस पुट करेंगे तो a प्लस बी, सो a माइनस बी टू a प्लस बी के रीजन में हमारी जो कर्व है वो लाई कर रही है। अब हम इसकी टेबल ड्रॉ करते हैं। For theta is equal to 0 degree. For 0 degree, cos theta will be 1, so this value will be a plus b. Now for cos 30 degree, it will be a plus b root 3 by 2. Let us put for 60 degree. So it will be a b by 2 plus a. Next for 90 degree, it will be a. Next for 180 degree, it will be a minus b. बीच में आप यहाँ पे 120 पुट कर सकते हो, सो 120 पे हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी बाय 2। सो नाउ अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारा कर्व किस टाइप से बनेगा। सो कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन, इट डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन एंड इट डज नॉट हैव एनी एसिम्पटोट। रीजन है हमारे पास a माइनस बी, सपोज ये मेरे पास a माइनस बी है और ये मेरे पास a प्लस बी है। a माइनस पे हम यहाँ लेते हैं, देखते हैं कहाँ पे आएगा। देखिए हमारे पास 0 पे a प्लस बी वैल्यू है, ये 0 पे वैल्यू है। फिर जैसे जैसे हम एंगल कम करते गए वैल्यू जो है वो डिक्रीज करती गई, और 90 पे हमारे पास क्या होगी इसकी वैल्यू a, दिस इज योर a। तो इस टाइप का 120 पे फिर वैल्यू डिक्रीज की, और फिर हमने देखा जब हमने 180 डिग्री पुट किया तो a माइनस बी आ गया। इसका मतलब वैल्यू जो है वो नेगेटिव में जा रही है। a माइनस बी का मीनिंग क्या है, वैल्यू जो वो नेगेटिव में जा रही है। नेगेटिव में जा रही है इसका मतलब ओरिजिन से तो पास कर नहीं रही वो वैल्यू, उसका मतलब कुछ इस टाइप से हमारा अंदर की तरफ जा रही है नेगेटिव वैल्यू। तो कुछ इस टाइप का जो है हमारा इसका कर्व बनेगा। देखिए यहाँ पे a जो b से ग्रेटर है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि a माइनस बी इज ग्रेटर देन 0, तो वैल्यू नेगेटिव होएगी ही नहीं। सो आई वाज रॉन्ग, ये कुछ गलत बना दिया मैंने, a लेस देन b का बन चुका है यहाँ पे। तो a माइनस बी ये वैल्यू, क्योंकि ओरिजिन से तो पास ही नहीं कर रहा ना ये, सो a माइनस बी वैल्यू इज दिस। सो इस टाइप का हमारे पास जो है वो ये a माइनस बी वैल्यू है, और ये इस टाइप का हमारे पास कार्डोइड बनेगा। This type will be the cardioid. Let us find the volume generated by this cardioid. Now volume will be symmetrical about the initial line, so we will use the formula from 0 to pi 2 by 3 pi r cube means a plus b cos theta whole cube sin theta
theta d theta. So let a plus b cos theta is equal to your t. So we have minus b sin theta d theta is equal to your dt. So यहाँ sin theta d theta की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डी टी बाई बी. So 2/3 pi from 0 to pi, this is t cube and minus dt by b. तो माइनस बाहर निकाल देते हैं. टी क्यूब का डेरिवेटिव होगा टी रेज टू पावर 4 बाय 4 फ्रॉम 0 टू पाई में रहेगा. यहाँ पे लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, जो भी लिमिट्स होंगी वो देख लेंगे बाद में. तो आ जाएगा -2 पाई बाई 3 बी, यहाँ पे आ जाएगा 4. अब टी रेज टू पावर 4 को टी को हम क्या पुट कर सकते हैं, a प्लस बी कोस थीटा रेज टू पावर 4. अब हम लिमिट्स जो है वो चेंज नहीं करनी पड़ेगी, 0 टू पाई रहने देंगे. So -2/3 2 pi by 3b into 4. जब हम पाई पुट करेंगे तो मिल जाएगी वैल्यू a माइनस बी रेज टू पावर 4. जब 0 पुट करेंगे हो जाएगा a प्लस बी रेज टू पावर 4. So this will be your answer. Now in example number 3 we have to show that the area lying between the cardioid r is equal to 2a1 plus cos theta. 1 plus cos theta के साथ कुछ भी हो कार्डोइड इसी टाइप का बनेगा हमारे पास. एंड विदाउट द पैराबोला हमारे पास कुछ इस टाइप का कर्व गिवन है. ये दोनों रिवॉल्व करते हैं अबाउट द इनिशियल लाइन एंड फाइंड द वॉल्यूम जनरेटेड. हमें शो करना है कि वॉल्यूम जो हमारे पास ये है. देखिए जो दोनों कर्व्स है हमारे पास, एक तो ये वाला पैराबोला है और एक ये वाला है कार्डोइड है. तो जब मैं इन दोनों में थीटा को माइनस थीटा में चेंज किया तो बोथ द इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, सो इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन. नाउ लेट अस सी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ दीस कर्व्स. Point of intersection will be 2a1 plus cos theta is equal to 2a divided by 1 plus cos theta. 1 plus cos theta square is equal to 1. So यहाँ पे थीटा को cos theta को 0 होना पड़ेगा. cos theta 0 कब होता है, प्लस माइनस 5/2 पे. तो ये वाला कर्व जो हमारे पास इस टाइप का बनेगा. इन दोनों के बीच का एरिया ये है. अब हमें इनके बीच का वॉल्यूम फाइंड आउट करना जो जनरेट होएगा. सो जो इन दोनों के बीच में एरिया इंक्लूडेड है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कार्डोइड माइनस पैराबोला. तो ये एरिया हमें मिल जाएगा. This is the cardioid and this is parabola. Since both is symmetrical about the initial line, so we will use the formula 2 pi by 3 r cube sin theta. This is for the cardioid and this is for the parabola. So now 2 pi by 3 दोनों में से कॉमन निकाल देते हैं. So from 0 to pi by 2 1 plus cos theta cube sin theta d theta. Similarly इसका आ जाएगा 0 to pi by 2 8a cube 1 plus cos theta cube sin theta. तो दोनों में आप क्या लेट करोगे, 1 plus cos theta को t मान के ये वाला dt में आ जाएगा. सिमिलरली इसको t मान के ये वाला dt में आ जाएगा. यहाँ पे मैंने 1 plus cos theta को t माना तो आ जाएगा माइनस sin theta d theta is equal to dt. तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 pi by 3 माइनस dt, ये आ जाएगा t क्यूब. तो इसको फर्दर इंटीग्रेशन करेंगे t raised to power 4 by 4. t की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज 1 यहाँ पे पुट कर देते हैं -1 प्लस कोस थीटा रेज़ टू पावर 4 बाय 4. फिर से हम वैल्यूज पुट करेंगे 0 टू पाई बाय 2. सिमिलरली इस क्वेश्चन में जब इसको टीरेट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 8a क्यूब माइनस प्लस बन जाएगा t क्यूब फ्रॉम 0 टू समथिंग जो भी वैल्यूज आएगी यहाँ पे देख लीजिएगा. और फिर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t रेज़ टू पावर -3 + 1 वैल्यू -3 + 1. इसको इससे सॉल्व करके आप इसका जो है वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो. हमारे पास आएगा 18 पाई a क्यूब. सो बाय दिस वॉल्यूम topic is completed. In the next video we will discuss about the surface of the solids. Till then, thank you.